भागी బంధువులకు శుభాకాంక్షలు. जी किशन रेड्डी जी, मेरा छोटा भाई मंदा कृष्ण मालिया जी, दूर दूर से आए मादिगा समुदाय के मेरे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, तेलंगाना के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के बीच आना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है और त्योहार के इस माहौल में जब हम अपने परिवार के बीच होते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। मैं तेलंगाना के दलित समुदाय का, तेलंगाना के मादिगा समुदाय का इस विशेष आयोजन में अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे छोटे भाई कृष्णा का आभारी हूं। मैं आप सबका भी आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे इतनी आत्मीयता से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి నా మాదిగ వర్గాల సోదర సోదరీమణులు, ఇతర మహానుభావులు, తెలంగాణ శ్రమజీవులు, ప్రతిభావంతులు మీ అందరి మధ్యలోకి రావడము చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ పండుగ వాతావరణంలో సహజంగా నా కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతా ఉంటే నాకు పట్టలేని ఆనందంగా ఉన్నది. అందుకనే నేను చాలా రెట్టింపు సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈరోజు నేను తెలంగాణ దళిత వర్గాలకు మరియు తెలంగాణ మాదిక సామాజిక వర్గానికి ఇంత పెద్ద విశాలమైనటువంటి సభ ఏర్పాటు చేసినందుకు నా తమ్ముడు కృష్ణ మాదిగకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీరు ఎంతో ప్రేమతో ఈ సభలో నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నా కుటుంబ సభ్యులారా, आजादी के बाद आपने देश में बहुत सी सरकारें देखी। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है, वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तेलंगाना की धरती के महान सपूत श्री गुर्रम जसुआ जी और उनके सामाजिक न्याय के कार्यों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। मुझे बताया गया है कि अपने लिखे साहित्य में उन्होंने एक दलित भाई का वर्णन किया था जिन्होंने काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ को
अपनी दुर्दशा बताई। काशी का सांसद होने के नाते इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने, आपके सुख दुख साझा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। मुझे लगता है कि आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। నా కుటుంబ సభ్యులారా, స్వాతంత్రం తర్వాత మీరు చాలా ప్రభుత్వాలు చూశారు. కానీ మా ప్రభుత్వము సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అని నినాదం ఇచ్చినప్పుడు ఒక సామాజిక న్యాయం, అన్ని వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం చేయాలనే తపనతో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉన్నది, పనిచేస్తూ ఉన్నది. మన గొప్ప సాహితీవేత్త గుర్రం జాషువాను ఇవాళ ఒక ప్రేరణగా తీసుకుంటే, ఒక దళిత మేధావి కవిత, ఒక సాహిత్యకారుడు ఆనాడు తనకున్నటువంటి బాధలను, వ్యధను కాశీలో ఉన్నటువంటి ఆ బాబా విశ్వనాథ్ కు మొరబెట్టుకుంటే, మరి ఈరోజు ఆ యొక్క బాబా యొక్క ఆశీర్వాదంతో వారణాసి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావడం అంటే ఆ బాబా ఆశీస్సులు. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆ యొక్క జాషువాను ప్రేరణగా తీసుకొని ఏ సామాజిక న్యాయానికైతే ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందో ఖచ్చితంగా ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాము. అందుకనే ఈరోజు మీ మధ్యలోకి నేను రావడం జరిగింది. నా కుటుంబ సభ్యులారా, मैं आज इस अवसर पर मादिगा समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले टीएन सदा लक्ष्मी जी और टीवी नारायण जी को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा। महान व्यक्तित्वों ने मादिगा समुदाय के हितों के लिए अपना जीवन खपाया है। मैं उन्हें नमन करता और मेरा छोटा भाई कृष्णा 30 साल से वन लाइफ वन मिशन आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कृष्णा, आपको बहुत साथी मिले लड़ने के लिए, आज एक साथी और जोड़ दो। మిత్రులారా, ఈ సందర్భంగా మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యల పైన పోరాటం చేసినటువంటి యోధులు ఇవాళ టిఎన్ సదాలక్ష్మి, అదే రకంగా టీవీ నారాయణ గారు స్వర్గీయులు, వారి ప్రత్యేకంగా ఒక భక్తి శ్రద్ధలతో వారిని నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ మహానుభావులు మాదిగ సమాజం యొక్క ఉన్నతి కోసం, వారి హక్కుల కోసం నిరంతరం జీవితం అంతా కూడా పోరాటం చేశారు, తమ జీవితాలను దారపోశారు. అదేవిధంగా నా సోదరుడు కృష్ణ మాదిగ 30 సంవత్సరాలుగా ఒకే లక్ష్యం, వన్ లైఫ్ వన్ మిషన్ అనేటువంటి ఒక ఉద్యమ కేంద్రంగా ఎదిగి మీ అందరి యొక్క సహకారంతో ఏ రకంగా ఉద్యమానికి వచ్చిందో మీరు ఈరోజు మీ ఉద్యమంలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసుకొని మీకు నేను తోడుగా ఈ సందర్భంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా మీకు నేను భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ मादिगा समाज के मेरे भाइयों बहनों और कृष्णा, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं।
मैं आज आया हूं आपके बीच आजादी के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने आपको वादा किया, आपसे धोखा किया, मैं आज एक पॉलिटिकल बिरादरी का व्यक्ति होने के नाते उनके पापों की क्षमा मांगने के लिए और उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। సోదర సోదరి మల్లారా, ఇవాళ కృష్ణ నేను ఇవాళ మీతో ఏది కోరడానికి రాలేదు. प्रियुलारा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों मिले हुए हैं। वो पर्दे के पीछे उनके खेल अलग है। कांग्रेस और बीआरएस एक तरफ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। उनमें राज करने की मानसिकता है, बीजेपी में सेवा करने का संकल्प है। हमने एससी और एसटी लोगों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को और सख्त किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि गरीबों को बैंक अकाउंट, गरीबों को टॉयलेट की व्यवस्था, गरीबों को गैस का कनेक्शन, गरीबों को बैंक से लोन, गरीबों के लिए पक्के घर, गरीबों को किसी चीज की दिक्कत ना हो। और इन सारी योजनाओं में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को सबसे अधिक लाभ दिया गया। మిత్రులారా, ఈరోజు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఈ ఎన్నికల్లో ఒకవైపు పోటీ చేస్తా ఉంటే బీజేపీ మరొక వైపు పోటీ చేస్తా ఉన్నది. ఇవాళ आज स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स एससी, एसटी को करोड़ों रुपयों का लोन देकर एंटरप्रेन्योर बना रही है। मुद्रा लोन का सबसे अधिक लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के मेरे भाई और बहनों को ही हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवंटित किए गए। पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना में ही 13 लाख से ज्यादा एससी छात्रों को करीब 1000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। अभी कुछ महीनों पहले ही बीजेपी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। हमारे कुम्हार हो, सुनार हो, सुतार हो, मूर्तिकार हो, ऐसे 18 प्रोफेशन से जुड़े लोगों पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। चाहे राज्य में हो या राष्ट्र के स्तर पर बीजेपी निरंतर वंचितों के विकास पर काम कर रही है। మిత్రులారా, ना कुटुंब सभ्युलारा, अपने गरीब भाई बहनों का ध्यान रखते हुए बीजेपी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को भी गरीबों को जो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए, इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। ये दिसंबर में उसका काम पूरा हो रहा था, लेकिन गरीब मां की गोद से पैदा हुआ ये बेटा अब गरीबों को ऐसे छोड़ नहीं सकता। और इसलिए मैंने संकल्प किया है अगले 5 साल के लिए
ये योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां तेलंगाना में भी लाखों साथियों को 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों का हित देखते हुए पैडी की सरकारी खरीद को भी लगातार बढ़ा रही है। बीते वर्षों में यहां पैडी की 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बोइल्ड राइस भी लेती है। अब हमारी सरकार ने ये निश्चय किया है, इस खरीफ सीजन में तेलंगाना के किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन बोइल्ड राइस अतिरिक्त खरीदा जाएगा। इससे एमएसपी का और ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मेरा यहाँ की राज्य सरकार को भी कहना है कि इस काम में ढिलाई न बरते। ये किसानों के हक का काम है, उनके फायदे का निर्णय है और इसमें चुनाव की कोई आचार संहिता बीच में नहीं आनी चाहिए। నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है। मेरा सौभाग्य रहा, आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जानते हो, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बंगारू लक्ष्मण जी मेरे नेता थे। वो मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे और मैं उनके अंडर में काम करता था। वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम सिखाया। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं बंगारू लक्ष्मण के साथ उनके हाथ नीचे काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, इसलिए आपको भली भांति जानता। मादिगा मेरे परिवारजनों, मैं आज बहुत भावुक हूं। आप कल्पना करिए, कृष्णा ने 30 साल अपनी जवानी पूरी खपा दी। इतना बड़ा आंदोलन अविरत रूप से चलाया। कृष्णा मेरा छोटा भाई है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे बंगारू लक्ष्मण के नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, वैसा ही मैं आज इतने बड़े समाज के साथ खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि अब मुझे, कृष्णा भले मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसके नेतृत्व में आपके लिए काम करने का सौभाग्य मिला है। తెలంగాణ మాదిగ సమాజానికి मैं आज कृष्णा के माता पिता को भी आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो समाज के हित के लिए 30 साल तक जूझता रहा, लड़ता रहा, हर किसी के पास पहुंचने रहा। मैं उस कृष्णा का आदर करता हूं, उसको जन्म देने वाला माता पिता का भी श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मित्रांनो, मैं आज, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं आज मादिगा समाज के
हर व्यक्ति को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 30 साल तक अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और पूरी तरह अहिंसक लड़ाई लड़ी। इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा समय पूरी तरह अहिंसा, आपने जग्गू बाबू को भी बताया, आपने बाबा साहब आंबेडकर को भी बताया, आपने बंगारू लक्ष्मण को भी बताया। और इसलिए मैं विशेष रूप से आप सबके इस आंदोलन की पवित्रता के लिए श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक से हर संघर्ष में आपके साथ खड़ी रही है। हम जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ये हमारा वादा है कि हम जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे जो आपके सशक्तिकरण के हर रास्ते को अपनाएगी। हम और आप ये भी जानते हैं कि एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आपकी इस लड़ाई को हम न्याय की लड़ाई मानते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान ने न्याय की जिम्मेवारी मुझ पर दी है। हम उस न्याय को सुनिश्चित करा करके ही रहेंगे। अदालत में भी आपको न्याय मिले, ये भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार न्याय के पक्ष में आपके साथी बन करके खड़ी रहेगी। मिथिला जी बेटा, ये बेटा एक आज इससे बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा। प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये दांत की स्थिति अच्छी नहीं देगा। प्लीज बेटा नीचे आइए बेटा। ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए। बहुत सच्ची है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा। ये यहाँ इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा, आप कृष्णा जी की बात मानिए, आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको लग रहा बीजेपी ही तेलंगाना के लोगों को सामाजिक न्याय की गारंटी दे सकती है। बीजेपी ही तेलंगाना को विकास के स्वर्णिम रास्ते पर ले जा सकती है। मुझे विश्वास है बीजेपी और आपका सहयोग, आपका साथ तेलंगाना डबल इंजन सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएगा। మిత్రులారా, ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే తెలంగాణలో సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఉన్నది। भाइयों बहनों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आज यहां से बता करके जाना चाहता हूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, सही लगे, तो आप सब अपने मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके मुझे आशीर्वाद देना। आज से इस आंदोलन में कृष्णा मेरा नेता है, मैं उनका आशीर्वाद हूं और मैं आपके लिए पूरे दायित्व के साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ रहूंगा।
మిత్రులారా, ఒక మహత్తరమైన ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాను. మీకు నచ్చితే వాళ్ళేం చేస్తే మీరందరూ కూడా మీ యొక్క మొబైల్ ద్వారా ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీరు అది ప్రదర్శించండి. ఇవాళ ఏ కృష్ణ మాదిగనైతే మీ న్యాయపరమైన హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారో, ఇవాళ కృష్ణ మాదిగ నాయకత్వాన వారికి నాయకుడిగా నేను పనిచేస్తాను. మీకు న్యాయం దక్కే వరకు కృష్ణ మాదిగకు అండగా ఉంటానని చెప్పి ఇవాళ ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రకటిస్తున్నానంటే ఇంతకంటే గొప్ప అవకాశం మనకు కలుగుతుందా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి. కృష్ణ మాదిగ పోరాటానికి నాయకత్వానికి నేను సహకారిగా ఉంటాను, అసిస్టెంట్ గా ఉంటానంటే వారికి మీకు న్యాయం దక్కడానికి వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి హోదాలో వచ్చినందుకు ఒక్కసారి మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ధన్యవాదాలు తెలిపి మొత్తం సమాజానికి తెలియజేస్తుందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. आप सभी यहाँ आए, हमें आशीर्वाद दिया, इनके लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। और इस आंदोलन में मेरे नेता कृष्णा है, मैं कृष्णा का साथी हूँ और मैं कृष्णा के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। మిత్రులారా, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో అందరం కలిసి భారత్ మాతాకి అని చెప్పి నిరంతరంగా కోరుతున్నాను. बहुत बहुत धन्यवाद।